جب اللہ سے بندہ طلب کرتا ہے تو وہ سنجا بھی ہو جاتا ہے، بادشاہ بھی ہو جاتا ہے، امیر بھی ہو جاتا ہے، فقیر بھی ہو جاتا ہے اور دنیا کا امام بن جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کے پیچھے چلے. یہ نہیں 2 آیتیں پڑھ لی، مسجد کا کنواں مل گیا تو بس وہ کہے کہ بس میں سارا دین کا علم میں نے کوٹ کر پی لیا. نہیں، یہاں پر بزرگوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء. کون فرماتے ہیں؟ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو چسکی دوں گا کہ مولانا روم صاحب کون سے بزرگ ہوئے. یہ شاہ شمس تبریز کے مریض ہوئے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا روم صاحب بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما سے. وہ میں شعر مکمل کر دوں پھر آگے چلتا ہوں. وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء. یہ کون فرماتے ہیں؟ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں، جن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیر رومی کا خطاب دیا ہے کہ مولانا روم صاحب یہ پیر رومی ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں عقل کو فرصت نہیں تنقید سے عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. عقل کو فرصت نہیں، علامہ صاحب فرماتے ہیں عقل کو فرصت نہیں تنقید سے عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. گزردہ علامہ صاحب فرماتے ہیں گزردہ عقل سے آگے کہ یہ دور چراغ راہ کا منظر نہیں. یعنی رستے کا چراغ ہے عقل. ہزاروں لاکھوں کام چلتے ہیں عقل سے، لیکن اس کو انتہا منتہا نظر سمجھنا، یہ کہنا بس یہ بس جو عقل مل گئی ہے بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ اس سے آگے بھی ایک منزل ہے. یہاں پر علامہ صاحب فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں عقل یار ہے سو بیس بنا دیتی ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں عقل عیار ہے. عیار کیسے؟ مکار کو، کنی چلاک. سجی دکھانی اور کھبی مارنی، کھبی دکھانی سجی مارنی. یہ عقل جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور بزرگوں نے یہ کہا کہ جب انسان زیادہ عقل کے پیچھے بھاگتا ہے نا، عقل کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی عقل بھی جاتی رہتی ہے. اس لیے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ اتنا وزن چاہو، اتنا وزن اٹھاؤ جس کو آپ اٹھا سکے، اتنا کھانا کھاؤ جس کو آپ ہضم کر سکے. یہاں پہ حضرت علی مرزا شیر خدا کا میں کوئی نقل کرتا. علی مرزا شیر خدا فرماتے ہیں وہ بات لوگوں کو نہ کہو جو ان کی عقل سے ماورا ہو. وہ بات علی مرزا شیر خدا خواب میں مجھے جناب نے پھاوڑا لگایا، وہ بھی مجھے پیر صاحب نے پیش کیا. کیا پدھی اور کیا پدھی کا جو ہوا، کہاں معاہدے سے ناقص العقل ناقص العلم، اور کہاں حضرت علی مرزا شیر خدا کہ جناب کے دربار کے کتوں کے پاس بھی ہم بیٹھنے کا بنے. ان کے قدموں کی جو حضرت علی مرزا شیر خدا کی جو کتے ہیں نا، کتے درباری کتے، ان کتوں کے قدموں کی دور بھی نہیں ہم. وہ ایسا بلند مقام ہے، ایسی بلند کی شان ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے علی مرزا قیامت کے دن جنگیوں کو ٹکٹ دیں گے جنت کا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. علی مرزا شیر خدا اللہ کے جناب قیامت کے دن جنگیوں کو ٹکٹ دیں گے. کیا بات ہے اللہ والوں کی، اللہ کے دوستوں کی کیا بات ہے. یہاں میں تھوڑی سی ایک بات سنا لوں پھر آگے چلے. حضرت علی مرزا شیر خدا جب میرے کے بعد پیر صاحب نے حضرت علی مرزا شیر خدا کے سامنے پیش کیا
आप सरकार दरवाजे के पास खड़े तशरीफ हमारे, मुझे अंदर दाखिल किया, कमरे में अंदर दाखिल किया। उस कमरे में हजरत जनाब गौसलान सरकार तशरीफ मा, सरकार के साथ मुबारक पर हीरों का ताज है, एलियन मुर्जा शेर खदा जनाब के साथ मुबारक पर हीरों का ताज है। एक उस कमरे में हजरत जनाब गौसलान तशरीफ फरमा, दूसरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े परेशानी की हाल में, ये उन दिनों की बात है जब इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पर, मुसलमान बहुत शहीद हुए, अपने मिर्ची के बंदे बहुत शहीद हुए, ये उन दिनों की बात है। आगे क्या हुआ, मुझे मेरे की पीसा ने पेश किया, कहाँ पेश किया, एलियन मुर्जा शेर खदा। जिगर के वक्त, असर के वक्त में पीसा के पास तशरीफ चला गया। आज आपने एक काम करना है। वो बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, एलियन मुर्जा शेर खदा, ये तीन हस्तियाँ बजट से अंसरी, बजट से अंसरी, एलियन मुर्जा शेर खदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये तीन हस्तियाँ बगैर जस्ते अंसरी वजूद मुबारक के साथ पाकिस्तान में तशरीफ लाए 1965। तो किला पीछा कर चुके रूहानी तलक था एलियन मुर्जा से, से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने मेरा काम जो है ये यस कर दिया, और मैं जो है ये बात ही खाले बहस थी, एलियन मुर्जा कहाँ, जनाब की शाम की वाला बयान कहाँ, कहाँ जनाब शहनशाह बगदाद। जनाब गौस पाक का अल्लाह ने ये मकाम बनाया है, सरकार एक कदम मुबारक करते हैं बली बनता है। जनाब नबी पाक जब तशरीफ ले गए ना उधर ऊपर जो महराज में, तो फरिश्ता था ना जिब्राइल, इब्राहिम जब सिरदो मुंतावा पहुंचा ना, वो कहने लगा जनाब नबी पाक के हुजूर में गुजारिश की, जनाब मैं से आगे नहीं जा सकता। नबी पाक मुझसे क्यों नहीं जा सकते? कहने लगा वो फरिश्ता कहने लगा, मैं अगर आगे आगे बोलूँ ना तो मेरे जो पद लग जाते हैं, मेरे अंदर ये कुव्वत नहीं है, ये इस्तात नहीं है कि मैं इस विशेषता से आगे परवाज करूँ। बताते हैं वहाँ पर जनाब हौसला सरकार तशरीफ फरमा हुए, जनाब नबी पाक को अपने कंधों पर उठाया, हौसला सरकार ने जनाब नबी पाक को अपने कंधों पर उठाया और अल्लाह के हुजूर में पहुँचाया। यहाँ वहाँ पहुँचे ना, तो नबी पाक अच्छा फरमाया, नबी पाक ने अच्छा फरमाया जनाब गौसलान सरकार को कि मेरा कदम मुबारक तुम्हारे कदमों पर है, मेरा कदम मुबारक तुम्हारे कदमों पर है, तुम्हारे कदमों पर पड़ा है मेरा कदम मुबारक, और तुम्हारी शान ये होगी कि हर वली की कदम पर आपका कदम मुबारक होगा, हर वली की जो है कदम जो कंधे पर आपका कदम मुबारक होगा। इस वजह भी ये वहाँ से सरकार नबी पाक की तरफ से अनाज हुई है। मैंने एक वाक़या पढ़ा है कि अभी जनाब हौसला सरकार एक बुर्ज अजमी है बगदाद शरीफ में, बुर्ज अजमी है, अजम कहते हैं ईरान को। जनाब हौसला सरकार ईरानी थे, ये बगदाद शरीफ में तशरीफ पहले नहीं थे रखते,
उनके वादे मेरा वो उस जगह में थे, वो ईरानी इलाके में। जनाब गौस आज़म बयान करते हैं 13 बरस जनाब गौस आज़म सरकार, जनाब गौस आज़म सरकार हुए 13 बरस उससे अजमेर बुर्ज अजमी है उस पर एक कदम मुबारक पर खड़े होकर बयान करते हैं बात। मुझे एक बंदा कहने लगा कलंदर साहब क्या चिड़ियाँ नमाज़ा पढ़ रहे हो, ओ टाइम होगा डिगना तो तुम पेशी जीतने हो, तो टाइम और जब टाइम ही सही नहीं होना तो इशारा चल जाने का नमाज, तो तुम क्या नमाज़ा पढ़ रहे हो, क्या हो पोलिया ओ असली कोई बनिया जो बंदे हैं ओ शहंशाह बगदाद लेस गुलाम अस नौकर अस खादम अस मरीद तो मां असल चीज जी है, असल कुवत जनाब गौस पाक नहीं है, असल कुवत जनाब नबी पाक नहीं है, असल कुवत सहाबा किराम नहीं है, असल कुवत औलिया किराम नहीं है, गौसा नहीं है, कुतबा नहीं है, कलंदर नहीं है, मजूबा नहीं है, फकीरा नहीं है, आदम अमल असिया नहीं है, वो असिया है असल नमाज पढ़े। यहाँ पर मौलवी साहब बुजुर्ग हुए उन्होंने कहा है बाज़-ज़बान तस्वीर दर दिल गाओ खर, बाज़-ज़बान तस्वीर दर दिल गाओ खर, ई चुनी दारू क्या असर, ई चुनी तस्वीर क्या दारू असर। ये कौन फरमाते हैं? मौलाना रूम साहब जो पीरे रूमी हैं, अलामा साहब के वो पीरे रूमी अलामा साहब के वो पीर हुए हैं, वो फरमाया अलामा साहब फरमाते हैं पीरे रूमी का रफीके रहा क्या खुदा बख्श तुझा थोड़ो गुदाज, तू मौलानों को अपना साथ बना तो क्या है अल्लाह तुझे इश्क अता करेगा, इसको वहाँ से मिलेगा जहाँ इसका ढंग पर होगा। तो जहाँ पर खुश बैसे हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, तो उनसे ग्रेज करना चाहिए। हाँ, मैं बात यहाँ पर बड़ी अजीब सुनाने लगा हूँ। मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार तशरीफ फरमा थे, किताबें पढ़ी, किताबों को ढेर लगा हुआ था, शागिर्द बैठे हुए थे, वो इल्म पढ़ रहे थे, अब शाह समझ तो दे वहाँ से गुजरे, कहते हैं सारे का फضل है जो कि मन शाह बोला तो फضل अजीम, ये अल्लाह का फضل है जिसको चाहता नाज करता है। अल्लाह किसी का ताबे नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी का गुलाम नहीं है। तो क्या हुआ, मौलाना रूम साहब बैठे हुए, किताबें जेल लगा हुआ है, शाह शमस का देश गुजरे, और शाह शमस का देश तो थे ना, ये बुजुर्ग किस्म के फकीर थे, अशारा किया किताबों की तरफ, अशारा किया किताबों की तरफ, फरमाने लगे ये चीज़, मौलवी साहब पूछने लगे ये चीज़ ये क्या चेल रहा है वो भैया, ये चेल रहा है ये किताबा ना, ये शकील है नहीं, ये क्या है? उन्होंने तकिया ना, मौलवी साहब तकिया देखिया तो वो फिर फरमाने इन्ने के तूने में दानी ऐ मौलाना रूम, ये वो इल्म है तो तू नहीं जानता, तो तुम आप नहीं जानते, ये किताबी इल्म है, एक किताबी इल्म होता है, एक इल्म दुनी होता है, फिर इल्म की भी 3 किस्में हैं। एक वो इल्म है जो सिर्फ किताबी इल्म तक मौजूद रहता है, फिर दूसरे हैं वो है जो दिल का इल्म रखते हैं, और तीसरा वो है जो रूह का इल्म रखते हैं, बातन का इल्म रखते हैं, दिल का इल्म रखते हैं।
یہ مختلف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کسی بھی اللہ کچھ دیتا ہے, دیا ہے کسی کو کچھ دیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے. جو جس کے مقدر میں اس کو ملتا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ علم نہیں دیا تو سارے نہیں گھوم گئی. نہ, اللہ کی مخلوق میں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں, سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ڈاکے. وہ اللہ والے جو سوئے ہوئے ہیں لیکن قلبی طور پر, روحانی طور پر, علمی طور پر, ادبی طور پر, عطاعت کے طور پر وہ جاگتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو جاگ رہے ہیں لیکن سوئے ہوئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جاگتے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ قلبی طور پر, روحانی طور پر, علمی طور پر وہ سوئے ہوئے ہیں. اصل وہ مخلوق ہے جو باطنی طور پر جا رہی ہے, قلبی طور پر جا رہی ہے, روحانی طور پر جا رہی ہے, علمی طور پر جا رہی ہے, ادبی طور پر جا رہی ہے, عطاعت کے لحاظ سے جا رہی ہے. یہ سب لوگ ایک جیسے, اللہ کی مخلوق ایک جیسی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اللہ والے ہیں, ان تک پہنچنا بھی اس وقت تک ممکن ہے جب اللہ والے ملیں. یہاں پر میں پہلے وہ مولوی صاحب کا واقعہ بیان کروں. وہ جب گزرے شاہ شمس قدیر, تو ہمارا یہ چیز سے ڈھیر کیا لگایا کتابوں کا. مولوی صاحب انہوں نے دیکھا تھا کہ موجود درویش ہے, فقیر ہے, وہ پھر فرمانے لگے, مولوی صاحب فرمانے علم تو تم میں دانی, یہ وہ علم ہے جو تم آپ نہیں جانتے. یہاں پر دو روایتیں کی گئی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ کتابوں کو آگ لگی, کتابوں کو آگ لگی. وہ مولوی صاحب پہ جدی میں کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے, یہ کتابوں کو آگ لگ گئی, لگانے والا کوئی نہیں, آگ لگ گئی, کس حد لگ گئی یہ چیز. وہ کہنا ہے مولوی صاحب بنایا یہ علم ہے گا, وہ جو بزرگ تھے شاشمت سے, اور مانا یہ علم ہے کہ تو نہ میں وہ علم ہے, یہ علم لدنی ہے, یہ علم لدنی ہے. علم لدنی اس کا ذکر قرآن میں آیا. جب موسیٰ علیہ السلام نکلے نا علم لدنی حاصل کرنے کے لیے, تو ان کو رہنمائی کی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک اللہ کا بندہ ملے گا. قرآن میں آیا ہے اللہ کا بندہ آپ کو ملے گا, خضر علیہ السلام ملیں گے, اور تم ان سے یہ علم حاصل کرو گے, علم لدنی ان سے حاصل کرو. چلے جاؤ فلاں مقام پر, جہاں دو دریا آپس میں سمندر ملتے ہیں, وہاں پر وہ بزرگ ملے. جب گئے موسیٰ علیہ السلام تو ان کو نشانی یہ دکھائی گئی تھی جہاں مچھلی پانی میں غائب ہوگی, جہاں مچھلی پکی مچھلی پانی میں غائب ہوگی, اس مقام پر تمہیں وہ بزرگ ملیں گے. خیر ایسا یا گیا موسیٰ علیہ السلام, تو خیر ایسا سوئے ہوئے تھے. وہ جب جاگے نا تو قرآن میں آیا ہے, قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے, گزارش کرنے لگے, جناب آپ کے پاس جو علم ہے نا, علم لدنی, خدائی علم, ڈائریکٹ اللہ سے حاصل کرنا, اس کے لیے میری رہنمائی سنیں. خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو آپ علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اس میں میری ایک شرط ہے کہ جب تک میں اس علم کے مطلب بیان نہ کروں
आपने वहाँ उसको खरीदना नहीं है, उसने किए नहीं निकालने हैं, उसने दाएं फाइन में बात नहीं करी है। मैं खुद बयान करूँगा, जो मैं बयान करूँगा उसमें आपने नहीं गड़बड़ कर, उसमें मुदाखलत नहीं करनी। वो मूसा साहब के फरमाने में कौन है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके मामलात में मुदाखलत ना करूँ, कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो, लेकिन शर्त यह है कि मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है। वो जब चले ना, मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम चले, तो क्या हुआ? एक बच्चा रास्ते में मिला। इसका जिक्र अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है। किसी का जिक्र सुनाया, उस बच्चे का जिक्र किया, छोटे बच्चे का जिक्र किया। तीसरा एक दीवार खिज़र सामने बनाई, उसका जिक्र किया। तीनों मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम, तीनों मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम ने मुदाखलत की। जब वो बच्चे को कत्ल किया ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, ये बच्चा जो है ये बालग नहीं है, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, आपने इससे बना वजह क्यों कत्ल किया? क्या कहा? आपने इस बच्चे को बिना वजह क्यों कत्ल किया? इस पर शीर्क भी लागू नहीं है, शीर्क का इजलाक भी नहीं होता है, कोई जुर्म भी इन्होंने नहीं किया है, कोई कत्ल नहीं किया इस बच्चे ने, आपने क्यों इसको कत्ल किया? खिज़र साहब फरमाने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपको कहा था ना कि नमता चाहिए सब्रा, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा, मैं अजीब व गरीब बातें करूँगा, ऐसे से अजीब वाक़यात करूँगा, उस तुम्हारे इल्म और फिक्र से के मावरा है, परे है, तो आप सब्र नहीं कर सके तो आप बोल पड़ेंगे। वो ऐसा ही किया, मैंने लड़के को कत्ल किया है, तो ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। खिज़र साहब फरमाने लगे मूसा अलैहिस्सलाम को, ये जो चीज़ आप इतराज़ करते हैं ना कि आपने बच्चे को क्यों कत्ल किया है, अब मैं इसकी हकीकत बयान करूँगा कि मैंने इसको कत्ल क्यों किया है। खिज़र साहब फरमाते हैं, ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा जिसको मैंने कत्ल किया है, इसके माँ बाप नेक थे, इसके माँ बाप नेक से। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है ये बच्चा बड़ा होकर गलत काम करेगा, अपने वालिदैन जो नेक वालिदैन हैं उनके लिए वो परेशानी का रखे। अल्लाह ने मुझे कहा है कि इस बच्चे को मार दूँ। अब दिख रहा है कि अल्लाह ने फरमाया, मैंने जो किया अल्लाह के फरमाने के मुताबिक किया, मैं अपनी मर्जी की। वो मूसा अलैहिस्सलाम से ना कहा ना हमारे को गलती होगी, मैं जो है एतराज़ की बात सुने, आपकी बात पर एतराज़ किया है, चलो मैं एतराज़ करूँ। आगे गए किसी पर बैठे। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन जो मवाद से उन्होंने पहचान लिया कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम से उन्होंने पैसे न लिए। जब दूसरे क्लास में गए ना खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो जो थे ना खिज़र अलैहिस्सलाम, उन्होंने किसी के को तोड़ दिया। वो मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने मना नहीं किया था कि मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है, जो मैं खामोशी से देखें मैं क्या करता हूँ। वो जो थे ना मूसा अलैहिस्सलाम, वो फरमाने अच्छा
मैं एहतराज करूँगा, आइंदा आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगा। खिलर साहब फरमाने लगे ये दो बातें हो चुकी है, तीसरी बात है तो तीसरी बात है तो तीसरी बात आपने मेरे मामलात में मुदाखलत की थी, मैं तुमको अदा कर दूँ, अपनी सोसाइटी से अपनी सब जो है उसे करारा कश कर दूँगा। कुरान में आया खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम एक गाँव में पहुँचे तो वो जो गाँव वाले थे ना, उन्होंने रोटी वगैरह ना दी, उनको मनी पिसा ना दिया, रोटी ना दी, खाना ना दिया, वो भूखे। वो खिजर अलैहिस्सलाम ने एक जगह दीवार गिरी थी, उसको तैयार किया। वो मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े, एक तो उन्होंने हमें खाना नहीं दिया खाने के लिए, और दूसरा आपने वहाँ पर मुसोई दीवार चढ़ा दी, आपने क्या दिया इनसे? दिया भी कुछ नहीं है, उन्होंने दिया भी कुछ नहीं है, हम भूखे हैं, तो इनको मुसोई दीवार चढ़ाने की क्या जरूरत है? उस वक़्त खिजर अलैहिस्सलाम, यहाँ पर बुजुर्गों ने ये बात भी फरमाई है कि जो खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ये पीर मरीद का मामला है। इसमें से पीर और मरीद के मामला सामने आते कि पीर को इस तरह होना चाहिए, मरीद को इस तरह होना चाहिए, पीर के सामने मरीद को बोलना नहीं चाहिए, इतराज़ नहीं करना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के बंदों के सामने अपनी चुलो नहीं डरनी चाहिए। हम जुमा दिगरे ने मारी जाए, कोई नहीं, बस सब कुछ नहीं जाने और इधर नहीं। जब किसी बार वो खिजर अलैहिस्सलाम ने वो दीवार बनाई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्तला किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम खिजर अलैहिस्सलाम मान लगे, अच्छा भाई मेरा और तुम्हारा जो मुआहदा था कि हम अलग हो जाएंगे, किसी बात जब आप कोई बोलेंगे तो अलग कर दिए जाए, आप अलग कर दीजिए। अच्छा आप ऐसा करें, ये जो 3 बातें मैंने आपके सामने की है, 3 बार एतराज़ किया है, आप इसकी हकीकत समझो, इसकी देखिए कि ये किस वजह से मैंने की है। पहले तो अल्लाह ने मूसा खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कुछ मैंने किया है ये अल्लाह के हुक्म से किया है। जो अल्लाह वाले होते हैं, फ़कीर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पीर होते हैं, साहिब बसीरत होते हैं, साहिब नज़र होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, और उनका इल्म नहीं होता है, वो किताबी इल्म नहीं होता, ये तकीया नहीं होती मौलियों की, ज़बान में कुछ हो, अमल में कुछ हो, नादब का ख्याल रखा, ना बुजुर्गों का ख्याल रखा, बस मैं ही सब कुछ चीज़ सारा मैं इस्लाम में नहीं ये सामान हुआ। अब खिजर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मूसा अलैहिस्सलाम को, अच्छा अब मैं उन 3 बातों की हकीकत तुमसे बयान करता हूँ। एक, जो मैंने किसी को तोड़ा है उसकी हकीकत क्या है? कुरान में है,